We have more breaking updates, this time from the national capital. Aam Aadmi Party stages protest against the BJP. AAP versus BJP over the MCD House ruckus. In fact, days after action and drama in MCD House, Aam Aadmi Party ups the ante against the BJP. In fact, we had witnessed ruckus at Civic Centre as BJP and Aam Aadmi Party councillors had clashed with each other and sloganeering just ahead of Delhi mayor polls, which was of course cancelled, which did not happen. Of course, chaos had ensued during the first meeting as Aam Aadmi Party councillors and MLAs had raised slogans and entered the wall. Now, of course, Aam Aadmi Party upping the ante against the BJP. बैठ जाओ सारे साथी, भाई बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाओ, खड़ा रहेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, हेलो भाई बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाओ, सौरभ भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो यहाँ आ जाए, बैठ जाइए भाई साहब, प्लीज बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। Who attacked the Aam Aadmi Party leaders as well. Continue to show the visuals, Ankit, to our viewers, because the Aam Aadmi Party councillors on one side is protesting at the DDU Marg, and they were trying to cross the barricades. They are trying to jump the barricades, but water cannons and the Delhi police personnel deployed in large numbers over here, and they have stopped them to go on the other side. The leaders over here clearly stating that it is the BJP who had started the violence inside the house, and they wanted to get the oath done as soon as possible. Saurabh Bharadwaj along with other BJP leaders over here at the DDU Marg, where the Aam Aadmi Party is protesting. Remember, it is just not the Aam Aadmi Party who is protesting, but also the BJP on the other side also protesting on the entire issue. Both sides are blaming each other on whatever transpired inside the house, which were seriously disgraceful as far as the visuals on that day is concerned, because the tables, the chairs, podiums, each and everything was broken inside the house, and certainly the people who came in clearly stated that it was such decisions which which should not be done. The protesters have now set over here on the road as well at the DDU Marg against the BJP. Several leaders over here as we continue to speak to Aam Aadmi Party leaders. आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स थे, आखिर क्या दिक्कत थी वहां पर हाउस में हंगामा करने की? आप लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स के बाद, ओथ लेने के बाद आप लोग ओथ ले लेते, क्या दिक्कत थी? अच्छा, आज तक के इतिहास के अंदर, नगर निगम के इतिहास के अंदर कभी मनोनीत पार्षद की इलेक्टेड पार्षद से कभी पहले शपथ हुई है? ये गैर संवैधानिक ये किस तरह कर रहा है? पहले मनोनीत निगम पार्षद की शपथ, अरे हम चुनाव जीत कर आए, जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें चुनकर भेजा है, तो पहले हमारी शपथ होगी, पहले नॉमिनेटेड काउंसिल की शपथ होगी, पहले हमारी शपथ कराओ, हम आएंगे पहले, फिर जो कराना कराओ। यह गैर संवैधानिक जगड़ी को आप नहीं चलेगा। ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई लोग कुछ वेपन्स लेकर आए थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला। देखिए, पिछले 15 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा, अब भी दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। Well, there you heard from the Aam Aadmi Party elected councillors over here as well. We will go across and try to speak to Saurabh Bharadwaj as well, the Aam Aadmi Party leader who is also here to protest against the Bharatiya Janata Party. Several other Aam Aadmi Party leaders over here. मैडम, आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी एक और प्रोटेस्ट कर रही है दूसरी तरफ आपके खिलाफ, ब्लेम गेम जारी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब आपके पास नंबर्स थे तो वहां पर आखिर क्या दिक्कत थी, आपने इतना हंगामा हाउस में क्यों किया? देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपनी चालों से बाज नहीं आती है।
जब से पहले जो हमारे 243R में भी लिखा हुआ है कि मनोनीत सदस्य जो हैं वो सबसे बाद में शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ब्लेम गेम, अपना गेम चालू रखा और उन्होंने सबसे पहले उन्हीं लोगों की शपथ दिलवाई, जबकि इलेक्टेड मेंबर्स पहले शपथ लेते हैं। और भी वो चाल करने में बाज नहीं आते हैं। वो मनोनीत सदस्यों से मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सभी मेंबर्स के वो ओथ लेने के बाद करवाना चाहते थे, बट ये सिस्टम उनका नहीं चलेगा। हम सिस्टम के साथ हैं, संविधान की हत्या नहीं करने दे देंगे। भाजपा वालों को शर्म करनी चाहिए। बीजेपी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस दिन हाउस में थे, वो लोग हाउस से बाहर निकलकर कुछ पार्षद को लेकर आते हैं, काउंसलर्स को लेकर आते हैं, और उनका कहना था आम आदमी पार्टी के कई लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर। क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वहीं थी। भाजपा वालों ने पहले हम पे अटैक किया था, उन्होंने उनको धक्का मारना शुरू कर दिया था, लेडीज को आगे करके भी उन्होंने धक्का मारा, हम लोगों ने तो सिर्फ बचाया था। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? यहाँ से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारे को ओथ लेने दी जाए, और जो मनोनीत सदस्य जिनका की सबसे एंड में रोल होता है वो उसी में वो करें। हमें पहले इलेक्टेड मेंबर्स ओथ लें और हमें अपनी सरकार बनाने दें आराम से। So the blame game continues between the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party over here over the mayoral elections. The Aam Aadmi Party councillors clearly stating that it was the BJP who tried to derail the mayoral elections. Yes, they had the number, but it was against the rule as far as Aam Aadmi Party is concerned. They are saying that it was the BJP who first got the nominated members took oath, but the elected members should take oath first, and therefore the reason perhaps they started the protest over here. Many other leaders over here who had now sat on the road to protest against whatever has transpired during the MCD house. But the Aam Aadmi Party leaders on the streets right now, it is the BJP and the Aam Aadmi Party both simultaneously protesting over here. Saurabh Bharadwaj joining with us over here as well. He clearly is stating that there has been several other leaders as well who try to bring weapons. आप लोगों से पूछना चाहेंगे किस तरीके से आप लोग इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके पास नंबर्स थे, क्या दिक्कत थी? नॉमिनेटेड मेंबर्स ने वोट दिए। ऐसा है, एलजी का काम दिल्ली को न्यूट्रल होकर चलाना है, ना कि पॉलिटिक्स करना। ये भाजपा के इशारे पे एलजी साहब हर एक काम कर रहे हैं, और इनकी नीयत पे साफ शक है, क्योंकि अल्डरमैन को आज तक के रिकॉर्ड में अल्डरमैन को पहले शपथ नहीं दिलाई गई। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को हमेशा शपथ दिलाई जाती है। निगम पार्षद को जो जनता से चुन के आए हैं उनको शपथ दिलानी चाहिए थी। आज इनकी ये पता चलता है इनकी मंशा क्या है। आम आदमी पार्टी जो जनता के द्वारा जीत के आई है, उनके साथ ये छल करना चाहते हैं, और जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। लोगों की डिमांड्स क्या है? यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जाना चाहते हैं, आपको जाने नहीं दे रहे, लेकिन हाउस को लेकर क्या डिमांड? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से एलजी को काम करना चाहिए, ना कि पक्ष लेकर भाजपा का ये काम जो कर रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से शपथ दिलानी चाहिए, जीते हुए को पहले दिलानी चाहिए, और अल्डरमैन का ये नहीं है कि आप अल्डरमैन को पहले शपथ दिलाएं। एक और बात आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कही है कि हमला भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां पर थे, उन्होंने कहा कि हमारे काउंसलर्स पर हमला किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा हाउस के अंदर। कितनी सच्चाई है? देखिए, आप पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी से जो झूठी पार्टी कोई है ही नहीं। उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। घायल हमारे पार्षद हुए हैं और झूठ वो बोल रहे हैं। अगर उनके पार्षद घायल होते तो आप मानते भी, मतलब घायल हमारे पार्षद हो और गुंडागर्दी वो मचाए।
और झूठा इल्जाम हम पे लगाएं। देखिए, हमारे बस पार्षदों ने इतना जरूर करा है कि उन्होंने इस बात का अपोज किया कि जो मनोनीत निगम पार्षद इन्होंने अवैधानिक तरीके से चुनकर लेकर आए हैं, उनको पहले शपथ दिलाने से पहले जो चुने हुए हमारे पार्षद है उन्हें शपथ दिलाई जाए। अगर उसका विरोध करे तो हमारे पार्षद कोई गलत काम नहीं करे थे, क्योंकि जो आज बीजेपी है उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और वो पूरी गुंडागर्दी पर उतर आई है ताकि दिल्ली के लोगों का काम बिगाड़ा जा सके। एमसीडी में जो